Now let us come to the final discussion and the final topic of the legislative relations, that is Article 254. It says inconsistency between the laws made by the parliament and the laws made by the legislatures of the state. ये आर्टिकल कहता है कि if any provision of law is made by the legislature of state which is repugnant to the provisions of a law made by parliament, मतलब state का law is in conflict with the law of parliament which the parliament is competent to enact, or to any provisions of an existing law with respect to one of the matters enumerated in concurrent list, then subject to the provision of clause 2, the law made by parliament, whether passed before or after the law made by the legislature of such state, or as the case may be, the existing law shall prevail, and the law made by the legislature of the state shall to the extent of repugnancy be void. In case of a conflict between a law of parliament and the law of the state legislature, the law of parliament will prevail and the law of the state legislature, so far as to the extent of repugnancy, would be void. Clause 2 talks about it where the law has been made by the legislature of a state with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list, contains any provision repugnant to the provision of earlier law made by parliament or an existing law with respect to that matter, then the law so made by the legislature of the state shall, if it has been reserved for the consideration of the president and has received his assent, shall prevail in that state, provided that nothing in this clause shall prevent the parliament from enacting at a time any law with respect to the same matter, including a law in addition to amending, varying or repealing the law so made by the legislature of the state. बेसिकली क्या मतलब है क्लॉज 2 का? क्लॉज 2 बता रहा है कि अगर मैटर कंकरेंट लिस्ट में है और यूजुअली लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एक ऐसा लॉ पास करना चाहता है विच इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद द पार्लियामेंट्री लॉ, ठीक है, then it has to be referred to the assent it has to be reserved for the consideration of the president and it has to receive his assent. बिना उनकी assent receive किए जो लॉ है वो वैलिड नहीं कराया जा सकता. तो जो क्लॉज 2 है वो प्राइमरली इस कॉन्टेक्स्ट में है कि ऐसा लॉ को वैलिड कैसे करार दें, ठीक है. कि एक इसका एग्जाम्पल है, ये रियलिटी में हुआ भी था जाली कट्टू के केस में. अब जाली कट्टू के केस में क्या था, यूनियन मिनिस्ट्री, जो स्पेसिफिकली स्पीकिंग मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, उसने अंडर आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट एक्ट, पर वो वाइल्ड लाइफ एक्ट से कनेक्टेड एक मैटर था, एनिमल क्रुएल्टी से भी कनेक्टेड एक मैटर था. तो बेसिकली उन्होंने जाली कट्टू को बाय नोटिफिकेशन एनिमल क्रुएल्टी के एम्बिट में डाल दिया था. तो हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्ट था तमिलनाडु का उसको वॉइड करार दे दिया क्योंकि इट वाज इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट. तो क्योंकि अब वॉइड हो गया, वो बड़ा पॉपुलर लॉ था, तो स्टेट में होने लगी प्रोटेस्ट से होने लगी प्रॉब्लम. तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने क्या कहते हैं नेक्स्ट लेजिस्लेटिव सेशन में एक बिल प्रेजेंट किया लेजिस्लेचर के सामने में और लेजिस्लेचर ने वो बिल पास कर दिया. इट वाज अबाउट वैलिडेटिंग द जाली कट्टू. अब इस बिल का भी चैलेंज था कि इट वाज चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. वो एक्ट बन गया था बाद में एंड इट वाज चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु कर रहा है वो इलीगल है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए. स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने यही जो बिल था इसको प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया फॉर रिसीविंग हिज एसेंट. तो टॉक्स चल रही थी स्टेट और यूनियन के बीच की, इसको एसेंट दे दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि एट दैट टाइम द मैटर वाज सब जुडिस कि वेदर जालीकट्टू कम्स इन द एम्बिट ऑफ एनिमल क्रुएल्टी और नॉट. तो देन अटॉर्नी जनरल ने रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आप जो है जो जजमेंट है ना इस मैटर पे अभी आप रिजर्व कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू गिव हिज असेंट. ठीक है, याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल इज द वॉइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट before the Supreme Court. When the Attorney General is speaking, it is actually the Union of India who is speaking.
तो क्या कहते हैं, तो मेन जो इशू था कन्फ्लिक्ट के कारण, जिसके बेसिस पे जो लॉ वॉइड किया था जजमेंट में, वो यही रीज़न था कि भाई यूनियन मिनिस्ट्री का जो नोटिफिकेशन था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उसका जो नोटिफिकेशन था उसको यूनियन ने पहले विड्रॉ कर लिया, तो जो कॉज ऑफ एक्शन था जिसकी वजह से वो स्ट्रक डाउन किया गया था वही हट गया, और बाद में प्रेसिडेंट ने असेंट भी दे दी जालीकट्टू के लिए, तो ऐसे लॉ को बचा लिया गया। तो बेसिकली आर्टिकल 254 का जो क्लॉज 2 है ये उसी कंटेक्स्ट में है कि मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर को कोई लॉ पास करना है, मैटर कंकरेंट लिस्ट में है। अब ऐसा लॉ अगर पास हो गया देन इट वुड बी इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। लॉ, पार्लियामेंट का लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। क्लॉज 2 ऑलरेडी envisages a situation where the law made by parliament is already in existence, है ना। पार्लियामेंट का लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। सेकंड पे क्या है, सेकंड पे स्टेट वांट्स टू पास अ लॉ इन डेरोगेशन ऑफ इट, मतलब उससे कन्फ्लिक्ट में जाएगा। तो तरीका बताया गया है कि ऐसा करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को जो लॉ है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देना होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको कंसिडर करेंगे, असेंट देंगे, और अगर असेंट दे दिया तो वो लॉ स्टेट में प्रिवेल करेगा, ठीक है। अब प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइजो कहता है कि इवन दो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन हिज असेंट, पार्लियामेंट अगर फिर भी चाहे तो उसके बाद वो नया लॉ बना सकती है, उसी मैटर पे बना सकती है, कुछ ऐड कर सकती है, अमेंड कर सकती है, वेरी कर सकती है। तो जो प्रोवाइजो है वो पार्लियामेंट की पावर सेव कर रहा है कि ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट की असेंट अगर रिसीव हो गई इस मैटर पे तो पार्लियामेंट अब उस मैटर पे लेजिस्लेट नहीं कर सकती। नो, पार्लियामेंट कैन स्टिल लेजिस्लेट ऑन दैट मैटर एंड पार्लियामेंट कैन स्टिल अफेक्ट दैट लेजिस्लेशन विच हैज रिसीव्ड द प्रेसिडेंट्स असेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट की यहाँ पे पावर सुप्रीम है। पार्लियामेंट क्या कहते हैं, इस मामले में कोई भी डिसएडवांटेज सफर नहीं करती। वो चाहे तो ये जो बिल है, जो एक्ट है जिसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई है, उसमें भी एडिशन कर दे, अमेंड कर दे, रिपील कर दे, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर। आपको प्रोवाइजो सीधे ये बता रहा है। तो याद रखिएगा, द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड, ऐड, वेरी और रिपील द लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर विच हैज रिसीव्ड द प्रेसिडेंट्स असेंट इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल, ठीक है। ये क्लॉज 2 की सिचुएशन में अप्लाई करेगा। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, गुजरात यूनिवर्सिटी वर्सेस कृष्णा। इस केस में भी कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो रिपग्नेंसी है इट मे अराइज ऑन अ मैटर अदर देन इन कंकरेंट लिस्ट एज वेल। रिपग्नेंसी बिटवीन अ स्टेट लॉ एंड a parliamentary law may arise on a matter other than the matters in concurrent list। concurrent list में दोनों legislate कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है उसके अलावा भी अराइज कर सकता है। लेकिन अगर उसके अलावा अराइज करता है then the court uses the doctrine of pith and substance, ठीक है। when the matter goes outside the gambit of the concurrent list तो कोर्ट pith and substance यूज करता है। मैं आपको बता चुका pith and substance कब यूज होता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर आर्टिकल 254 इज एक्सटेंडेड टू अ यूनियन लॉ विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन यूनियन लिस्ट, तो ऐसा कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकल 254 वुड बी इलॉजिकल अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो आर्टिकल 254 है इसका जो स्कोप है ये सिर्फ कंकरेंट लिस्ट के मैटर्स तक कन्फाइंड है। अब इस पे कई एकेडमिशियंस का डिफरेंस है, वो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है स्पेशली इन द केस ऑफ होस्टेस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उस पर हम डिस्कशन करेंगे बाद में, वो गलत है क्योंकि टेक्स्ट बहुत एक्सप्लिसिट है, खुद ही सीधे से बता ही रहा है कि ये जो आर्टिकल 254 है वो अलग भी मैटर्स में अप्लाई कर सकता है। इस पर जो सबसे आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग एकेडमिशियंस जो हैं वो हैं प्रोफेसर पी.के. त्रिपाठी। उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इन होचेस फार्मास्यूटिकल्स इज़ रॉन्ग। लेकिन चाहे गलत हो या सही हो, सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है दैट इज़ बाइंडिंग ऑन एवरीवन, ठीक है। दैट इज़ द लॉ ऑफ द लैंड। वंस द सुप्रीम कोर्ट मेक्स अ जजमेंट दैट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड एंड इट बाइंड्स ऑल। खैर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया कि आर्टिकल 254 का जो क्लॉज 2 है इट प्रोवाइड्स फॉर क्योरिंग ऑफ रिपग्नेंसी,
ठीक है, उसके क्या एसेंशियल्स हैं? पहला एसेंशियल है देयर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। सेकंड एसेंशियल है कि उस लॉ के बाद स्टेट लेजिस्लेचर को कोई लॉ इनैक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू द मैटर इन कंकरेंट लिस्ट, और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर को वो लॉ प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना है। ठीक है, और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट में अगेन सुपरसीड द स्टेट लेजिस्लेशन इफ इट सो वांट्स, उसी की प्रोवाइजो बात करता है। तो अब हम आ जाते हैं केस लॉ पे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द केस ऑफ जावेर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 752। अब ये केस इलस्ट्रेट करता है एप्लीकेशन ऑफ प्रोवाइजो टू क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 254। अब इस केस में पार्लियामेंट इनैक्टेड एन एसेंशियल सप्लाईज एक्ट विच प्रोवाइडेड पेनल्टीज that is imprisonment up to 3 years for the violation of that act. The Bombay legislature passed an act enhancing the punishment from 3 years to 7 years. उस एक्ट ने गवर्नर जनरल की असेंट भी रिसीव कर ली और became operative। उस टाइम पे गवर्नर जनरल वाज देयर असेंट के मैटर्स पे। तो subsequent to the Bombay's Act, amendments were again made in the Central Act by the Parliament with the changes in punishment. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्योंकि both acts occupied the same field, the Bombay Act was impliedly repealed by the Parliamentary Act because of the repugnancy. The Central Act amended was a comprehensive code covering the entire field of punishment for the offences under the Act, graded according to the community and the character of the offence. Next leading case on Article 254 would be Deepchand versus State of Uttar Pradesh, AIR 1959, Supreme Court, page number 648. Now this case involved the validity of the Uttar Pradesh Transport Services Act, which authorized the state government to frame schemes of nationalizations of motor transport. The law was necessitated because Central Motor Vehicles Act did not contain any provision for the nationalization of motor transport services. Later, Parliament, for the uniformity of law, amended the Motor Vehicles Act by adding a new chapter, thus enabling the state government to frame and execute the schemes of nationalization. Supreme Court held that two laws belong to the same field, and the state law, to the extent of repugnancy, is therefore void. The new chapter in the Act does not indicate that the schemes already finalized should be reopened. The law under Uttar Pradesh Act subsists to support schemes framed thereunder and becomes void only in the respect of schemes framed under Central Act. Thus, what is void is not the entire law, but only the extent of its repugnancy. When both pith and substance and the period of operation coincide, repugnancy is complete and the whole act is void. The operation of the union law may be entirely prospective, leaving the state law to be effective with regard to a thing already done, and then Supreme Court laid down the test of repugnancy, which are as follows. First, the case of direct conflict. Direct conflict between the two laws, in which suppose one law says do and the other law says don't, and the conflict is between state and union law, then there is an inconsistency between the two statutes. Second is occupied field, where there is no apparent conflict, yet the repugnancy is there because both the laws cover the same field. मतलब स्टेट लॉ और पार्लियामेंट्री लॉ एक ही फील्ड को कवर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट ऑक्यूपाइड फील्ड से डील कर रहा है। देयर इज नॉट एन अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट इन दिस सेकेंड हेडिंग, दैट इज द हेडिंग ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड, जैसा कि हुआ था जावेर भाई के केस में। जावेर भाई के केस में जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट विच वाज बिकॉज ऑफ एन ऑक्यूपाइड फील्ड, मतलब उसमें एक इम्प्लाइड कन्फ्लिक्ट था, कोई डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं था या कोई अपेरेंट कन्फ्लिक्ट नहीं था। तो जब भी ऐसा अपीयर होता है फ्रॉम द टर्म्स, नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सेंट्रल लॉ that it was intended as a complete statement of law governing a particular matter,
then for a state legislature to enact a law with respect to the same subject matter is regarded as a detraction from the full operation of the central law and so is inconsistent. समझ रहे हैं? ऑक्यूपाइड फील्ड की जो डॉक्ट्रिन है, जो टेस्ट बनाया है, ये सेंस में है कि अगर मान लीजिए पार्लियामेंट ये सोचे कि मैं एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाना चाहती हूँ और मैं पूरी तरीके से जो जितने भी लॉज हैं इस मैटर पे मैं कंसोलिडेट करना चाहती हूँ, and if the parliament enacts a law with that intention that such statute is supposed to be a complete statement of law और उसी मैटर पे फिर स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना ले, तो यहाँ पे दोनों एक ही फील्ड ऑक्यूपाई कर रहे हैं और चूंकि सेंट्रल लॉ वाज सपोज टू ऑक्यूपाई द फुल फील्ड, तो ऐसी सिचुएशन में इनकंसिस्टेंसी फिर अराइज हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्यूपाइड फील्ड की डॉक्ट्रिन को डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की डॉक्ट्रिन से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा. डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो तब होता है जब एक लॉ कहता है कि हाँ यू कैन डू दिस, दूसरा लॉ कहता है कि आप नहीं ऐसा कर सकते. देन देयर इज अ केस ऑफ apparent then there is a case of direct conflict या apparent conflict. तीसरा है intended occupation. What is intended occupation? Where the parliament intended to lay down an exhaustive code in respect of the subject matter replacing the state act, or because a law may be in conflict with the intention of the dominant law to cover the whole field, thus although there may be no direct conflict, yet a state law would be inoperative. अब एक ऐसी सिचुएशन है कि मान लीजिए सेवरल स्टेट्स में अपने अलग अलग, इसको एग्जांपल से समझ लीजिए, सेवरल स्टेट्स में अलग अलग प्रोसीजरल कोड्स है. ठीक है, उनके अपने अलग अलग प्रोसीजरल लॉज हैं क्रिमिनल मैटर पे. वेस्ट बंगाल का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग है, दिल्ली का अलग है, एसेट्रा एसेट्रा मान लीजिए. अब बहुत सारे क्रिमिनल प्रोसीजर है ना, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है. तो पार्लियामेंट सोचती है कि ओके लेट अस यूनिफॉर्म दीज लॉज. तो पार्लियामेंट एक एग्जॉस्टिव लेजिस्लेशन क्रिएट करती है. ठीक है, अब वो जो एग्जॉस्टिव लेजिस्लेशन है, इट इज सपोज टू बी डोमिनेंट एंड इट इज सपोज टू कवर द इंटायर फील्ड. ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो लॉ पार्लियामेंट ने जो बनाया है उसका किसी भी स्टेट क्रिमिनल प्रोसीजर से बिल्कुल भी कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले रहे हैं, तो उस लॉ का बिल्कुल भी किसी भी लॉ से कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा है. लेकिन उसके बाद भी चूंकि पार्लियामेंट का जो इंटेंशन था दैट वाज टू क्रिएट एन एग्जॉस्टिव कोड एंड रिप्लेस द सेवरल डिफरेंट प्रोसीजरल लॉज which were in the state with regard to criminal matters without explicitly saying so, then in that situation, since the law is intended to occupy the whole field, then again there would be a situation of conflict and the state law would be inoperative. यहाँ पे direct conflict यहाँ पे ही नहीं है, लेकिन तब भी state law inoperative हो जाएगा. तो तीन situation है. ठीक है, पहला टेस्ट ऑफ रिपग्नेंसी क्या है? टेस्ट ऑफ रिपग्नेंसी के लिए तीन सिचुएशन क्या है? पहला है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट. आपको हेडिंग्स मेन याद रखनी है. हेडिंग याद रखेंगे तो कॉन्टेक्स्ट में आप लिख लेंगे कि क्या क्या आपको कंटेंट में लिखना है, एसेट्रा एसेट्रा. बस प्रॉपर कंटेक्स्ट में लिखिएगा. पहला है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, बहुत आसानी से समझना. वन लॉ सेज दैट डू समथिंग, अदर लॉ सेज दैट डोंट डू समथिंग. ठीक है, एक एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. एक लॉ कह रहा है ऐसा करना ऑफेंस होगा, दूसरा कह रहा है ऐसा लॉ करना ऑफेंस नहीं होगा. देन देयर इज अ केस ऑफ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट. इसमें कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट का लॉ. ऑलवेज पार्लियामेंट्स लॉ प्रिवेल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 254 एंड वी आर स्पीकिंग मोस्टली. देन कम्स ऑक्यूपाइड फील्ड. ठीक है, दूसरी इज द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड, where it appears from the terms and nature of the subject matter of the central law that it was intended as a complete statement of law governing a particular matter, then the state legislature cannot enact a different law on the same matter. ठीक. Third is intended occupation. When Parliament intended to lay down an exhaustive code with respect to a subject matter, replacing the state act, or because a law may be in conflict with the intention of the dominant law to cover the whole field, then even though there is no direct conflict, state law would be inoperative.
ठीक है, तो ऑक्यूपाइड फील्ड और इंटेंडेड ऑक्यूपेशन थोड़ा क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, तो मोस्टली ये सिमिलर साउंडिंग है, बट मेन डिफरेंस आप दोनों में पाएंगे कि ऑक्यूपाइड फील्ड की डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट मेजरली तब यूज करता है व्हेन द लेजिस्लेशन इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, पार्लियामेंट का लेजिस्लेशन इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस और स्टेट लेजिस्लेचर ने बाद में लेजिस्लेट किया है। लेट अस सपोज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, वो कहता है कि हमारे इफ यू कमिट एन ऑफेंस ऑफ करप्शन तो आपको 3 से 7 साल की सजा होगी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब स्टेट लेजिस्लेचर एक लॉ एनैक्ट करता है कि अगर आप करप्शन करते हैं वाइल इन आवर स्टेट तो आपको 3 महीने की सजा होगी, ठीक, ऐसा लॉ बनाता है। तो यहाँ पे क्योंकि पार्लियामेंट का लेजिस्लेशन इज ऑक्यूपाइंग दैट फील्ड एंड इट इज सपोज टू कवर द इंटायर सब्जेक्ट मैटर, तो स्टेट लेजिस्लेचर ने जो नया लॉ बनाया है ये इनऑपरेटिव हो जाएगा क्योंकि पार्लियामेंट लेजिस्लेशन इज एक्वायरिंग द इंटायर फील्ड, ठीक है, उसने पूरी फील्ड ऑक्यूपाई करके रखी है। तो अब यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेशन के लिए अब कोई जगह नहीं है। इंटेंडेड ऑक्यूपेशन की जो डॉक्ट्रिन है वो तब होती है जब स्टेट लेजिस्लेचर का ऑलरेडी लॉ है और अब पार्लियामेंट एक नया लॉ बनाना चाहती है इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई द इंटायर फील्ड, समझ रहे हैं? तो दोनों में डिफरेंस बस मेनली इस बात का है कि एक लेजिस्लेशन पार्लियामेंट का पहले है ऑक्यूपाइड फील्ड में और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर ने लेजिस्लेट किया है, और इंटेंडेड ऑक्यूपेशन के केस में जो लेजिस्लेशन है स्टेट लेजिस्लेचर का वो हो सकता है एग्जिस्टेंस में हो और पार्लियामेंट अब लॉ ला रही है इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई द वोल फील्ड, तभी इसको कहते हैं इंटेंडेड ऑक्यूपेशन। इंटेंडेड ऑक्यूपेशन का मतलब है पार्लियामेंट वांट्स टू ऑक्यूपाई द फील्ड, पार्लियामेंट इंटेंड्स टू ले डाउन एन एग्जॉस्टिव कोड in respect of the subject matter and it wants to replace the state act, ठीक है। तो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट, ऑक्यूपाइड फील्ड और इंटेंडेड ऑक्यूपेशन, ये 3 डॉक्ट्रिन्स को आप मेनली याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट केस में आ जाते हैं, ये है बैजनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1436। इन दिस केस पार्लियामेंट पास द माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 अंडर द एंट्री 54 ऑफ द यूनियन लिस्ट, declaring to take under union's control the regulation of mines and development of minerals to the extent provided in the act. In 1964, the Bihar legislature enacted Bihar Land Reforms Amendment Act, amending the Bihar Land Reforms Act 1950. The Amendment Act empowered the state government to acquire the land found to be in surplus in the hands of landowners. Supreme Court held that the state law was void to the extent of surplus area containing mines and minerals, ठीक है? Why? क्योंकि mines and minerals का जो regulation और development act है, it is being dealt with by the law made by parliament, ठीक है? Then state law cannot occupy that field. Now let us come to the next case. That is M. Karunanidhi versus Union of India, AIR 1979, Supreme Court, page number 898. Now in this case the appellant was a former chief minister of the state of Tamil Nadu. He abused his official position, thus a prosecution launched under IPC and Prevention of Corruption Act. The state act relating to public men criminal misconduct was passed after obtaining the president's assent and later repealed. The question arose whether the action could be taken under the central laws, that is IPC and Prevention of Corruption Act. The appellant contended that even though the state act was repealed, it was repugnant to the central act, thus by virtue of clause 2 of article 254, central act provisions stood repealed when the state act was passed and thus couldn't be applied for prosecuting unless they are reenacted. The question was whether there was a repugnancy between the state act and the central act. That was the issue that was framed by the Supreme Court. Supreme Court ने बोला कि state act was not repugnant to, although the definition of criminal misconduct was substantially the same in both laws, the state act had created a distinct and separate offences with different ingredients and punishment. Thus in that law there was no collision. उस law में कोई collision नहीं था बिल्कुल भी.
According to the Supreme Court, the State Act was rather a complementary act, and it itself provides that the Central Act to come to its aid after investigation is completed. It provides that public men will have to be prosecuted under the Central Act. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ में पाया ये हमारी नई वाली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं है, ये पुरानी वाली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, वो रिपील हो चुकी है. द न्यू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इज 1988. ठीक है, तो इस केस के 10 साल बाद आई है. अब सुप्रीम कोर्ट ने कन्फ्लिक्ट क्यों नहीं पाया था? सुप्रीम कोर्ट ने कन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं पाया था क्योंकि जो स्टेट एक्ट थी वो दूसरे ऑफेंसेस प्रिस्क्राइब कर रही थी. ठीक है, और उनका पनिशमेंट भी अलग था. It was not the same thing as it was in the Prevention of Corruption Act. That is why the Supreme Court never found a conflict. अगर substantially दोनों ही सेम होते और पनिशमेंट डिफरेंट होते हैं तब सुप्रीम कोर्ट कहता है yes they are occupying the same field and there is a conflict, but because there were different ingredients of the offense, there were distinct and separated offense, the punishment was also different. Then basing its reasons, the Supreme Court said that the act was complementary act and it is not in conflict with the parliamentary act. फिर Supreme Court laid down a test of repugnancy. Supreme Court said, और ये आप ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को आपको लिखना है. First, there is a clear and direct inconsistency between the state and union law which is irreconcilable so that they can't stand and operate together in the same field. The Supreme Court test of repugnancy बता रहा है कि repugnancy कैसे होगी जब वहाँ पे क्लियर या डायरेक्ट इनकन्सिस्टेंसी हो स्टेट और यूनियन लॉ के बीच में कि दोनों को रिकनसाइल आप नहीं कर सकते. ठीक है, कि ये दोनों एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकते एक साथ सेम फील्ड में. सेकेंडली, देयर कैन बी नो रिपील बाय इम्प्लीकेशन unless the inconsistency appears on the face of the two statutes. Repeal by implication तब तक नहीं माना जाएगा जब तक दोनों ही जो लॉज हैं स्टेट के और सेंटर के वो ऑन द फेस ऑफ इट appears to be inconsistent. ठीक है. थर्ड, where two statutes occupy a particular field but there is a possibility of both operating in the same field without colliding, then there is no repugnancy. Fourth, no inconsistency but a statute occupying the same field seeks to create distinct and separate offenses, then there is no repugnancy. However, a state law is repugnant to the union law if it is intended to be a complete exhaustive code on the subject matter, even if no intention, then also the state legislature enacting a law covering the same subject matter which is intended to occupy the entire field would create repugnancy. ठीक है, तो घूम फिर के वही तीन टेस्ट उन्होंने रिटरेट किए जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ: डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट, ऑक्यूपाइड फील्ड एंड इंटेंडेड ऑक्यूपेशन. ठीक है, तो ये हो गया. एक और केस बताता हूँ, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस श्री कृष्ण, AIR 1988, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 329. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि राजस्थान शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1958 इज नॉट रिपग्नेंट बट सप्लीमेंट्री टू द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इन सो फार एज स्टेट लॉ प्रोवाइड्स फॉर सेफगार्ड्स ऑफ वर्कर इन एडिशन टू दोज कंटेन्ड इन द सेंटर एक्ट. तो अगर कोई भी स्टैट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट लॉ वैलिड होगा. वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि इट इज़ रिपग्नेंट. लेकिन जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये पा लिया कि ऑक्यूपाइड फील्ड के मैटर पे लेजिस्लेशन है, ठीक है, और सेम सब्जेक्ट मैटर पे है, सेम कंटेक्स्ट पे है, और दोनों एक ही फील्ड में ऑपरेट नहीं कर सकते एक साथ, तो वहाँ पे रिपग्नेंसी अराइज हो जाती है. अब मैं आपको बताता हूँ केस होचेस्ट फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ये सबसे लीडिंग केस है इस पे. इनफैक्ट इसके बाद एक और लीडिंग केस है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा लीडिंग केस है इस पे.
ठीक है, इसमें इसका साइटेशन है AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1019। अब इस केस में इशू था कि वेदर देयर इज अ रिपग्नेंसी बिटवीन ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो कि यूनियन एक्ट है, और दूसरा सेक्शन 5 ऑफ बिहार फाइनेंस एक्ट जो कि स्टेट एक्ट है। While the Union Act confers a right on the manufacturers or the producers to pass on the liability for sales tax on the consumers, the Bihar Finance Act prohibits from such passing. The Union made such a law under entry 33 of the list 3, that is the concurrent list, while the state made such a law under entry 54 of the list 2, that is the state list. The appellant Hoches Limited contended that the state law which interdicts that a dealer liable to surcharge shall not be entitled to collect it from the purchaser directly trenches upon the union's power to legislate with respect to the fixation of the price of essential commodities. It was said that if both laws are valid, then ex hypothesi the law made by parliament must prevail एंड द स्टेट लॉ प्रोटेंटो मस्ट यील्ड। मतलब बेसिकली वो कह रहे थे कि भाई यूनियन लॉ को प्रिवेल करना चाहिए और स्टेट लॉ इसमें इनवैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया, पहली चीज सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ सेंटर laid down in Article 246 cannot be resorted to unless there is an irreconcilable conflict between the entries in the union and the state list. In case of a seeming conflict, the entries should be read together without giving a narrow meaning to either of them. It should be considered whether a fair reconciliation can be achieved by giving the language of a union list a meaning which, if less wide than it might in another context bear, is yet one that can properly be given to it, and equally giving to the language of the state list a meaning which it can properly bear. तो बेसिकली मैं आपको ये बता चुका हूँ कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट एंट्रीज को लिबरल कंस्ट्रक्शन करता है और कभी कभी जब कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है तो एक एंट्री को थोड़ा लिमिटेड कंस्ट्रू कर सकता है और दूसरी एंट्री को थोड़ा लिबरली कंस्ट्रू करता है. ठीक है, दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग. सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है इस मामले में, पर बेसिकली उसका मतलब यही है. मैं आपको जब बता रहा था इंटरप्रिटेशन ऑफ लिस्ट की डॉक्ट्रिन, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में, नॉट जस्ट सुप्रीम कोर्ट, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में construe one entry in a wide sense than it has in one context, and in another sense it can construe one entry in a bit of a narrow sense in order to uphold the powers of both union and the state. ठीक है, वो ऐसा भी नहीं चाहता कि एक एंट्री को इतना वाइड हम कंस्ट्रू कर डालें कि उसी एंट्री के अंदर सारे मैटर्स आ जाएं, तो बाकी एंट्रीज तो सुपरफ्लुअस हो जाएंगी ना. येट एट द सेम टाइम्स वो इतना नैरो कंस्ट्रक्शन भी नहीं करना चाहता कि इतना नैरो कंस्ट्रक्शन कर दिया कि उसके अंदर जो लिखा है उसके अलावा उसके एक्सिलरी या सब्सिडियरी मैटर्स आ ही नहीं पा रहे, है ना. तो ये पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास, दैट इट कैन कंस्ट्रू वन एंट्री इन अ वाइड सेंस इन वन कंटेक्स्ट, इन अदर कंटेक्स्ट इट कैन इंटरप्रेट इन अ नैरो सेंस. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज जो आर्टिकल 246 क्लॉज 1 का है वो तभी ऑपरेट करना चाहिए अगर रिकंसिलिएशन इम्पॉसिबल है. ठीक है, सेंटर की यूनियन लॉ की सुप्रीमेसी तभी होती है जब रिकंसिलिएशन इम्पॉसिबल हो जाता है. और किसके हिसाब से? आर्टिकल 246 के हिसाब से. लास्टली सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मतलब सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग, लास्टली नो क्वेश्चन ऑफ conflict between the two entries will arise if the impugned legislation by the application of the doctrine of pith and substance appears to fall exclusively under one list and the encroachment upon another list is only incidental. These rules should be applied when resolving conflicts which arise from overlapping powers in mutually exclusive list. तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब ओवरलैपिंग ऑफ एंट्रीज होती है, स्टेट लॉ है थोड़ा वो यूनियन के लॉ को टच कर रहा है, यूनियन का लॉ है थोड़ा वो स्टेट लिस्ट के मैटर में टच कर रहा है, एक्सेट्रा.
तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कि पिथ एंड सब्सटेंस से अगर ऐसे लॉ को सेव किया जा सकता है तो उसको सेव किया जाएगा, ठीक है, बट किस डॉक्ट्रिन से? पिथ एंड सब्सटेंस की डॉक्ट्रिन से, ठीक है। फिर एक कंटेंशन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि दो एनैक्टमेंट्स जो हैं इस केस में ये इनकंसिस्टेंट हैं, क्योंकि एक जो राइट है वो लेती है और दूसरा जो है वो कहती है कि यू कैन डू अ फॉलोइंग एक्ट, मतलब एक राइट दे रही है और दूसरी राइट ले रही है, ये कंटेंशन लिया गया था, ठीक है। तो ऐसे केस में दोनों में ही ओबीडियंस इम्पॉसिबल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑब्जर्व किया कि ये आर्ग्यूमेंट गलत है, दो ऑब्वियस रीजंस के कारण। पहला, एंट्री 54 ऑफ द लिस्ट 2 is a tax entry and therefore there is no question of repugnancy because there is a complete separation of taxing powers of the union and the state under article 246. In list 1, entries 1 to 81 deal with the general subjects of legislation, entries 82 to 92 deal with taxes, 82 to 92A deal with taxes. In list 2, entries 1 to 44 deal with general subjects of legislation and entries 45 to 63 deal with taxes. In list 3, there is no entry relating to a tax. Thus, in our constitution, a conflict of taxing power of the union and state cannot arise. ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि in our constitution there cannot be a conflict of taxing power of the union and the state. Secondly, question of repugnancy can arise only, ध्यान रखिए, Supreme Court is again saying, and I emphasize, the repugnancy can arise only in the connection with the subjects enumerated in the concurrent list, as regards to which both the union and the state legislature have concurrent powers, so that the question of conflict between laws made by both legislatures relating to same subject matter may arise. Supreme Court के हिसाब से जो आर्टिकल 254 है इसका जो स्कोप है ये concurrent list तक confined है, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 254 के कॉन्टेक्स्ट में बोला कि आर्टिकल 254 क्लॉज 1 हैज नो एप्लीकेशन टू केसेस ऑफ रिपग्नेंसी ड्यू टू ओवरलैपिंग बिटवीन द लिस्ट 2 ऑन वन हैंड एंड लिस्ट 1 एंड लिस्ट 3 ऑन द अदर। इफ सच एन ओवरलैपिंग एग्जिस्ट इन एनी पर्टिकुलर केस, द स्टेट लॉ विल बी अल्ट्रा वायर्स बिकॉज ऑफ द नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज इन आर्टिकल 246 read with opening words subject to in article 246(3). In such a case, state law will not fail because of repugnancy to the union law but because of want of legislative competence. Supreme Court कह रहा है कि state law अगर मान लीजिए ऐसे मैटर पे लेजिस्लेट करता है जिसकी उसके पास कॉम्पिटेंस नहीं है तो वो फेल इस मैटर पे नहीं करता क्योंकि वो पार्लियामेंट्री लॉ से कन्फ्लिक्ट पे है, वो फेल इस मैटर पे करता है क्योंकि वो लॉ उस मैटर पे लॉ बना ही नहीं सकता, it is incompetent to enact a law on that matter. फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, it is no doubt true that the expression a law made by parliament which the parliament is competent to enact in article 254 is susceptible to a construction that a repugnancy between a state law and a law made by parliament may take place outside the concurrent sphere because parliament is competent to enact a law with respect to subjects included in list 3 as well as list 1. But if article 254 is read as a whole, it will be seen that it is expressly made subject to clause 2 which makes reference to repugnancy in the field of concurrent list. In other words, if clause 2 is to be the guide in determination of the scope of clause 1, the repugnancy between the union and the state law must taken to refer only to the concurrent field. It is well settled now that the words with respect to in article 254 qualify a law made by parliament which parliament is competent to enact as well as provision of any existing law. For article 254 to apply, two conditions must be fulfilled. First, the provision of the state and union law must both be in respect of the matter enumerated in concurrent list, and second, they must be repugnant to each other. अब डिसीजन क्या दिया उसके बाद इतना लॉ का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के बाद डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया दैट द टू एक्ट्स ऑपरेट इन डिस्टिंक्ट फील्ड, क्योंकि एक
लिस्ट 2 में आती है, दूसरा लिस्ट 3 में आती है, डिफरेंट फील्ड्स में ऑपरेट करती है, एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी क्लैश बिटवीन द टू लॉज. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 254 का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कंकरेंट लिस्ट तक कन्फाइन कर रखा है, और होचेस्ट फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इज द मोस्ट लीडिंग केस ऑन दिस पॉइंट. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को लेके, भूलिएगा मत. ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोकस क्लासिकस है. ठीक है, अब बेसिकली बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ है इस जजमेंट का, क्योंकि कई लोगों के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 254 का बड़ा नैरो कंस्ट्रक्शन किया है. इसमें प्रोफेसर पी.के. त्रिपाठी इज हेडिंग द इंटायर इंटेलेक्चुअल डिबेट. कई और एकेडमिशियंस हैं, उनके भी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा नैरो कंस्ट्रक्शन किया है, बट दैट डजंट मैटर. ठीक है, द लॉ मेड बाय द लॉ इनैक्टेड by parliament when given an interpretation by the supreme court becomes the law of the land. supreme court जो interpretation देगा parliament के law पे या constitution के matter पे, that is the law of the land. be very particular about that. ठीक है, हम आप क्या मानते हैं that is irrelevant. law क्या है ये courts ही बता सकते हैं. हाँ, आप कोर्ट के सामने एज अ लॉयर आर्ग्यू कर रहे हैं तो आप अपना ओपिनियन भी प्रेजेंट करिए, आप एकेडमिशियंस का भी पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करिए, आप एक आर्ग्यूमेंट करिए. लेकिन जब आपको बताना है कि प्रेजेंट सिचुएशन लॉ की क्या है, आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन या हाई कोर्ट के साइटेशन से ही बता सकते हैं, जस्ट इन केस द सुप्रीम कोर्ट साइटेशन इज नॉट अवेलेबल ऑन दैट पॉइंट. फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कैसर ए हिंद प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3404. अब ये जो केस है आर्टिकल 254 क्लॉज 2 के कॉन्टेक्स्ट में है. ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ था? इन दिस केस आर्टिकल 254 क्लॉज 2 वाज इन इशू एंड द क्वेश्चन वाज over what type of central laws a state legislation reserved for the consideration of the president and receiving his assent would prevail. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि that it prevails only in with reference to those central laws on the matters falling in the concurrent list. अगेन वही रिटरेट किया था कि उन्हीं मैटर्स पे स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा जब वो मैटर कंकरेंट लिस्ट में जाता है. ठीक है, तो उसी मैटर्स पे अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट मिल जाती है तभी वो लॉ स्टेट में ऑपरेट कर सकता है. सो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फिर वहीं पे मेन पॉइंट पे आता है कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस तो होनी ही चाहिए. अगर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ही नहीं है तो रिपग्नेंसी का कंटेक्स्ट ही नहीं अराइव करता, रिपग्नेंसी का मैटर ही नहीं अराइज करेगा, क्योंकि स्टेट इज इनकॉम्पिटेंट टू एनैक्ट अ लॉ ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो फिर वो एक्ट स्ट्रक डाउन कर दी जाएगी अगर उसको किसी भी तरीके से बचाया नहीं जा सकता. तो याद रखिएगा, कॉम्पिटेंसी ऑफ द लेजिस्लेटर टू एनैक्ट अ लॉ मस्ट ऑलवेज बी देयर. बिना कॉम्पिटेंसी के तो कुछ भी नहीं हो सकता. तो सुप्रीम कोर्ट ने अगेन बोला कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट उन्हीं मैटर्स में मिल सकती है. क्लॉज 2 का स्कोप सिर्फ कंकरेंट लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में. फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन वर्ड्स का मतलब बताया कि व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड्स रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन इन आर्टिकल 254 क्लॉज 2. Supreme Court ने बोला that these words indicate that there should be an active application of the mind by the President to the repugnancy pointed out and the necessity of having such a law in the fact and circumstances of the matter. The word consideration would manifest after careful thinking over and due application of mind regarding the necessity of having a state law. The President may grant assent then. ठीक है, तो मतलब ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, वहाँ पे मैकेनिकली एक्ट नहीं करना है. और याद रखिएगा, प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन इज डजंट मीन हिज पर्सनल सेटिस्फैक्शन. द यूज ऑफ द वर्ड असेंट फर्दर अफर्म्स दैट आर्टिकल 254 क्लॉज 2 द इम्प्लाइड नॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट टू द रिपग्नेंसी बिटवीन द स्टेट लॉ एंड द अर्लियर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर एंड द रीजंस फॉर ग्रांट ऑफ सच असेंट. दैट हैज़ टू बी देयर. इसको भी प्रेजेंट होना चाहिए कि इम्प्लाइड नॉलेज कि भाई ये स्टेट लॉ है, इट इज़ इन डेरोगेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री लॉ. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने असेंट दे दिया और फिर वो कहीं मुझे तो पता ही नहीं था कि कन्फ्लिक्ट था. ऐसे नहीं किया जा सकता. दूसरा क्या ज़रूरी है? एक्टिव एप्लीकेशन ऑफ माइंड और देयर शुड बी रीजंस टू ग्रांट सच असेंट. सुप्रीम कोर्ट ने फिर एम्फोसाइज किया कि जो पावर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करते हैं अंडर आर्टिकल 254 क्लॉज 2, ये एक स्पेशल कंस्टिट्यूएंट पावर है विच इज वेस्टेड विद द हेड ऑफ द यूनियन एज अ प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
and the safety valve to safeguard the fundamental rights and the federal structure of the country's polity. The power exercised by the president is a part of legislative procedure and not an exercise of the legislative power. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ अ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पर इट इज नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ अ लेजिस्लेटिव पावर. ये एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बताया जा रहा है कि इस प्रोसीजर के थ्रू ऐसे लॉ को बचाया जा सकता है विच इज इन डेरोगेशन ऑफ अ पार्लियामेंट्री लॉ. ठीक है, आर्टिकल 254 के क्लॉज 2 की बात हो रही है. तो ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का पार्ट है, बट इट इज नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर एज इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. Hence, whether the constitutional procedure before enacting the law has been followed or not can always be examined by the courts. ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बताया था. मैं आपको थोड़े इंस्टेंसेस बता देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा दैट द यूनियन लॉ एंड द पार्लियामेंट इन जनरल हैज़ मोर पावर एज कंपेयर टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स. क्योंकि बार बार आप सुनते आ रहे हैं कि यूनियन इज डोमिनेंट, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपको कैसे लगता है इट इज़ मोर डोमिनेंट. देखिए इसके कई इलस्ट्रेशन हैं. जैसे आर्टिकल 256 आपको सीधे ही बता देता है कि इन केस ऑफ एन ओवरलैपिंग बिटवीन द थ्री लिस्ट द प्रीडोमिनेंस इज गिवन टू द यूनियन लिस्ट, और उसके बाद प्रीडोमिनेंस इज गिवन टू द कंकरेंट लिस्ट, और लास्टली स्टेट लिस्ट. दूसरा है कि कंकरेंट स्फेयर में भी अगर रिपग्नेंसी होती है स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ में तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा. थर्डली है कि यूनियन लिस्ट के मैटर्स को जब आप देखेंगे तो देखेंगे बहुत ज़्यादा वाइड है. इट इज़ मच वाइडर एज कंपेयर टू द मैटर्स इन स्टेट लिस्ट. फिर रेसिड्यूरी पावर्स किसको दी गई हैं? पार्लियामेंट को दी गई हैं. उसके बाद जो पार्लियामेंट है वो सर्टेन सिचुएशंस में स्टेट लिस्ट के भी मैटर में लेजिस्लेट कर सकती है, जैसा कि आपने आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 251 एक्सेट्रा इन सब में आपने देखा होगा. ठीक है, और भी हैं, आप देख लीजिएगा. उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटीज़ की जब बात आती है तो ये पावर भी पार्लियामेंट के पास है. स्टेट लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी फॉरेन ट्रीटी नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता. दैट पावर हैज़ बीन एक्सप्रेसली बी गिवन टू द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 253, है ना. उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल हो जाती है एज इन केस अंडर आर्टिकल 356, तो प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. फिर उसके बाद आर्टिकल 247 को देखेंगे तो वो आपको खुद बताता है कि पार्लियामेंट एडिशनल कोर्ट्स क्रिएट कर सकती है फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. ठीक है, तो उस मैटर्स पे स्टेट लेजिस्लेचर भी कोर्ट्स नहीं इस्टेब्लिश कर सकता, है ना. अगर मान लीजिए पार्लियामेंट्री लॉ है, लेट अस सपोज आईपीसी है या सीआरपीसी है, सीआरपीसी का एग्जांपल लेते हैं, तो उसके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अनलेस एंड अनटिल द पार्लियामेंट इटसेल्फ इज एम्पावरिंग द स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर टू एस्टैब्लिश द कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो एक्सप्रेसली पावर से पार्लियामेंट को ही दे रखी है ना आर्टिकल 247 में. तो मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स हैं, उसमें सिर्फ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन ही हो सकते हैं, उसमें स्टेट का लेजिस्लेशन हो ही नहीं सकता. तो ये सारी चीज़ें आपको ये दिखाते हैं कि यूनियन लिस्ट के मैटर्स में अगेन उसके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के भी मैटर में, यूनियन जो लॉ है उसके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के भी मैटर्स में अगेन पार्लियामेंट इज द मोस्ट डोमिनेंट एंटिटी. फिर उसके बाद आपको पता है, आपने स्टेट के डिस्कशन में जब मैं कंपैरेटिव एनालिसिस आपको करके दिखा रहे थे तो कई जगह पे गवर्नर, स्टेट के गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बिल को भेजना पड़ रहा था इन ऑर्डर टू रिसीव हिज असेंट, है ना. तो अगेन ये आपको दिखाता है कि स्टेट लेजिस्लेचर बाय इटसेल्फ आर नॉट सुपर पावरफुल व्हेन वी कंपेयर इट टू द यूनियन, है ना. उसके बाद आर्टिकल 288 का क्लॉज 2 देखेंगे तो वो कहता है कि स्टेट टैक्स लगा सकता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर और इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड, जनरेटेड, कंज्यूम्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड बाय एनी अथॉरिटी विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. उसमें स्टेट टैक्स लगा सकता है, पर ऐसा कोई भी लॉ वैलिड नहीं होगा जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वो कंसिडरेशन के लिए ना भेजा जाए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट ना मिल जाए. ठीक है, वंस अगेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स असेंट. फिर आप आर्टिकल 304B पे आ जाएंगे तो फिर आपको वही मिलेगा कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर वांट्स टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द स्टेट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, देन अगेन दिस लॉ cannot be introduced without the previous sanction of the President of India. तो
थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ इलस्ट्रेशंस थे, आई डोंट मीन टू बी एग्जॉस्टिव, थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन आपको यही लगेगा कि मोस्टली द पावर इज बीइंग हेल्ड बाय वूम, बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, बाय द यूनियन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो टिल्ट है वो यूनियन की तरफ है एज कंपेयर टू द स्टेट्स। तो इस चीज को लेके थोड़ा बहुत क्लियर रहिएगा। तो यहाँ पे आपको जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत प्रिसाइज रहना पड़ता है केस लॉज को भी लेके, क्योंकि इसमें केस लॉ भी बहुत है और इसमें आर्टिकल्स भी बहुत है ना। दैट इज वाई इट इज द पार्ट ऑफ द ग्रेड 5। ग्रेड 5 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस और सीपीसी। जिसने ग्रेड 5 मास्टर कर लिया वो कोई भी लॉ मास्टर कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा मास्टर करने का मतलब ये नहीं है कि आप डिग्री ले लें। यहाँ पे मास्टर करने का मतलब है कि आपकी बेयर एक्ट और जो लोकस क्लासिकस है, सारे केस लॉज पे नहीं, सारे केस लॉज तो पढ़ना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, जो लोकस क्लासिकल्स है, जो प्रिंसिपल्स है, उस पे आपकी कमांड है। चलिए केस लॉ का नाम भी नहीं आता, जो प्रिंसिपल्स जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया उस पे अगर आपकी कमांड है, आप कोई भी लॉ मास्टर कर सकते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉ जिसको आप मास्टर नहीं कर सकते। चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, आप उसको समझ लेंगे, मास्टर कर लेंगे। मास्टर करने का जो मेरा कॉनोटेशन है वो इस सेंस में है कि आप उसको समझ भी पाएंगे जल्दी, उसके प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट भी कर पाएंगे और अप्लाई भी कर पाएंगे, ठीक है। एक्ट समझने में आपको देर नहीं लगेगी। यू विल रीड द प्रोविजंस, यू विल अंडरस्टैंड इट, आप जार्गन भी आराम से समझेंगे, आप उसका एप्लीकेशन भी आराम से समझेंगे, और फिर धीरे धीरे ना यू बिल्ड योर नॉलेज। तो आपका जो स्कोप होगा प्रैक्टिस का भी और जुडिशियल एग्जामिनेशन का भी, वो बहुत वाइडर रहेगा। अब कोई सिर्फ क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आ रहा है, तो नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम हिम, उसको बहुत दिक्कत होगी when he tries to understand CPC all of a sudden, क्योंकि CPC में जब वो कॉज ऑफ एक्शन समझेगा, फिर वो जानेगा अच्छा इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं इन्फोर्स करूंगा कैसे। क्योंकि सिर्फ इतना जानना थोड़ी ना ज़रूरी होता है कि आपके पास राइट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको प्रोसीजर भी तो पता चले कि हाँ राइट है, इन्फोर्स कैसे होंगे, क्या बोलना होगा, क्या नहीं बोलना होगा, कब बोलना होगा, किस स्टेज तक बोला जा सकता है, कहाँ कहाँ एविडेंस दिखाया जा सकता है, क्या क्या एविडेंस है। तो इसके लिए ना प्रोसीजरल लॉ की भी कमांड बहुत ज़रूरी होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही सुप्रीमा लेक्स। तो याद रखिएगा, ग्रेड 5 में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो ग्रेड 5 को मास्टर करने की कोशिश करता है, वो हमेशा लॉ की फील्ड में टॉप करेगा, चाहे वो किसी भी लाइन में चला जाए, ठीक है। और उसकी रिस्पेक्ट भी बहुत होगी। रिस्पेक्ट उसकी नहीं होती है जो सिर्फ लिमिटेशन पढ़ के आ जाता है, इवन दो लिमिटेशन प्रैक्टिकली स्पीकिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्ट, लेकिन कोई लिमिटेशन और सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ के आ जाए और अगला व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के बैठा है, भले ही उसे ना पता हो कि भाई किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने का, स्पेसिफिक रिलीफ डिमांड करने का लिमिटेशन पीरियड क्या है, फिर भी उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। सो वी बी वेरी पर्टिकुलर। ग्रेड 5 को समझना और मास्टर करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए, आज हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशन खत्म हो गया। टुमारो विल स्टार्ट विद जुडिशियल पावर्स। इसको हम जल्दी खत्म कर देंगे क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में मोस्टली हमने आपको कॉम्पनसेशन समझा दिया, कैसे करना है, क्या करना है। अब आपको बस थोड़ा बहुत कुछ आर्टिकल्स बताने हैं और एक दो केस लॉ बताने, मेन मतलब एक दो तो केस लॉ कभी नहीं होते, बहुत सारे ही केस लॉ होते हैं जनरली, लेकिन इसमें दो ही केस लॉ मेनली इंपॉर्टेंट है। एक एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होगा जुडिशियल पावर्स में, और दूसरा आपका वो होगा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।